The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2002 and surpassed 15 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Atomy Hemohim surpassed 2 trillion Korean won in cumulative sales, ranked #1 in domestic health functional food exports. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch. Absolute Cell-Active Skincare received King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021 for the first time in the cosmetics industry and was selected as world-class product for next generation selected by Ministry of Trade, Industry and Energy in 2022. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy practices customer-centered management in all its business activities, and such efforts were recognized by the acquisition of Customer-Centered Management Certification for 2 consecutive years, which is a unique accomplishment in the industry. Starting with the U.S. branch in 2010, Atomy is a global company which opened 25 branches in Asia, South America, Oceania, Europe, etc., with 15 million members worldwide. It opened branches in Brazil, Mongolia, and Uzbekistan in 2022. And starting with Germany in 2023, it is planning to open 20 branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's Success System, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system, which transcends time and space by providing a variety of services. For our partner companies to pay the utmost attention to quality, Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth.
Sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Wherever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. Jayanta sir, please, over to you. अनम्यूट कर सकते हैं जयंत सर आप। यस सर, गुड इवनिंग ऑल। तो हम मीटिंग शुरू करने से पहले हमारा ट्रेडिशन है कि हम हमेशा ऑटो के साथ शुरू करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरुण सर को कि सबको अनम्यूट किया जाए, तो हम ऑटो से शुरू करेंगे सर। राइट, रेडी। There is the spirit, see the vision, keep the faith, Follow the faith, son. come on. इनको अगर वो एक अनम्यूट कर लें जयंत सर। यस सर, यस सर। तो सबको गुड इवनिंग और एक बार। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन, जो कि सक्सेस प्रिंसिपल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो सक्सेस प्रिंसिपल के लिए मैं एक संस्कृत के श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम प्रमोदो धुति स्मृति ही समीक्ष्य चो समारंभो बिंधी मूलम भवस्यतु। इसका मतलब है उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य और स्मृति, ये और सोच विचार, ये कार्य आरंभ करने के लिए इसी के साथ कार्य आरंभ करना चाहिए। ये ही सक्सेस की मूल मंत्र है। तो हमारे जो आज के स्पीकर है, जो हम हमारे साथ सक्सेस प्रिंसिपल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के शेयर करेंगे, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा। मेरे डायनामिक अपलाइन जो जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको 17 साल की एक्सपीरियंस है। एफएमसीजी से लेकर ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और बहुत सारे इंडस्ट्री में वो काम किए हैं। करेंटली वो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। इंडिया के टॉप न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत बार कई रिपोर्ट उनका पब्लिश हुआ है। उनको कई सालों से एटोमी जैसी कंपनी की चाहत थी और खोज भी थी, तलाश भी थी। और 2020 में जब मिला तो तुरंत ज्वाइन होकर अपना टीम बिल्ड करते करते एटोमी लॉन्च होते ही सेल्स मास्टर रैंक अचीव की है पहले फुल साइकिल के अंदर। सबको पता है एटोमी नवंबर 11 में लॉन्च हुआ था और 11 से 15 तक हमारा पहला साइकिल था। वो फुल साइकिल नहीं था, 4 दिन का साइकिल था। और जो दूसरा साइकिल था नवंबर 16 से 30 तक, वो फुल पहला साइकिल था। उस पहले साइकिल के अंदर जो हमारे आज के स्पीकर वो सेल्स मास्टर की रैंक अचीव किए थे। और एक ऑफलाइन के तौर पर उन्होंने एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बन के हमेशा टीम मेंबर की मदद किए हैं और ग्रोथ के लिए रेडी रहते हैं। उनके लिए एक पोएम लिखा है मैंने। तो उनकी डायरेक्ट सेलिंग आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने इस बिजनेस का गुरु है माना। लीस्ट
बिल्डिंग कहो या फिर इनविटेशन, जूम प्रेजेंटेशन कहो या फिर मोटिवेशन, फॉलोअप कहो या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑफलाइन सेमिनार कहो या फिर टीम आउटिंग, डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, हर सिचुएशन को डाउनलाइन के लिए आसान बना, लाइन के जीत में अपनी जीत खुद किंग मेक को जगाना, जगे हुए को समझाना, समझदार को तैयार करना, तैयार करके जितवाना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आपसे ही जाना, आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना। ही इज नॉन अदर देन राकेश कुमार फ्रॉम जयपुर, सेल्स मास्टर एटम इंडिया। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं राकेश सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आइए, स्टेज इज योर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग की प्रिंसिपल सक्सेस के बारे में जो भी प्रिंसिपल हमें अवगत कराइए और हमें सक्सेस की राह दिखाइए। थैंक यू सो मच सर। नाउ स्टेज इज योर्स सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस एक बार जयंता जी मुझे कंफर्म करना, और आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रहा है। राइट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच जयंता जी, आपने बड़ा एक शानदार तरीके से, आपकी एक कला है और उसके हम लोग कायल हैं कि आप कभी भी कोई इवेंट को स्टार्ट करते हो तो आपका एक अपना लहजा है, एक अपना स्टाइल है, और इसी स्टाइल के हम तो दीवाने हैं, बाकी का पता नहीं, मैं तो दीवाना हूं आपके होस्टिंग का। सो थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग जिस सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, बात हम लोग वही सब करेंगे जो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो। राइट, प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, प्रेजेंटेशन जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, एक द वे ऑफ गिविंग जो इंफॉर्मेशन, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके हम सामने रख देते हैं, बात वही करते हैं जो आप लोग को पता है। और अनफॉर्चुनेटली सब कुछ पता होने के बाद भी हम लोग ऐसा व्यक्त करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के इस दौर पे। इंसान को मालूम है, इंसान कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को काम नहीं करना आता, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता, कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे को ये आइडिया नहीं है कि बिजनेस करते कैसे हैं, मुझे ये भी नहीं पता प्लान कैसे दिखाते हैं। ये सबको पता है प्लान क्या है, ये सबको पता है कंपनी क्या है, ये सबको मालूम है कंपनी कैसे कर रही है, ये आप लोग को कोई पता है कौन लोग किस लेवल पे अचीवमेंट निकाल रहे हैं, सक्सेस करके आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीजें हमें पता है। लेकिन उसके बाद भी क्या है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, राइट? उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये बार बार हम लोग कई बार मीटिंग्स के अंदर कहते हैं कि इंसान आगे बढ़ता है तो वो खुद के बलबूते पे आगे बढ़ता है, अगर वो रुकता है तो खुद का ही उसको अपना सारा ब्लेम देना चाहिए, राइट? अगर आप इस बिजनेस के अंदर कल को इंपीरियल बनोगे, अपने आप को आप उस क्रेडिट देना चाहिए, आप क्रेडिट देना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के बात अपने पे ही आती है कि आप किस मोड पे जा रहे हो बिजनेस को लेकर के, राइट? तो आज कुछ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ बातें ऐसी हम करने वाले हैं जहां पे आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से जब मिलोगे, सक्सेसफुल कॉर्पोरेट में चले जाओ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर आप चले जाओ, आईएएस ऑफिसर से मिल लो, ब्यूरोक्रेट से मिलो, जो भी आपके सक्सेस का एक पैमाना है और आप जो समझते हो कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल है मेरी नजर में, जाकर के जब हम उनके साथ बैठोगे और जब उनसे आप पूछोगे, डिस्कस करोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अपने हम लोग अपने माँ बाप से सुनते थे ना कि मेरे ये सिद्धांत है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, हमारे घर से, हमारे पूर्वजों से मुझे ये सिद्धांत मिला है। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत प्रिंसिपल होता है, लाइफ जीने के प्रिंसिपल होते हैं। आप किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, है भी या नहीं है? अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए नहीं है तो फिर कैसे कर रहे हो काम? क्या राम भरोसे जिंदगी चल रही है? कैसे हो रहा है? तो हमें कई लोग जाने अनजाने में फॉलो करते हैं, कई लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, और कई लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव के साथ उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? सक्सेस प्रिंसिपल जो आज आप लोग हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं एक प्रेजेंटेशन के तहत दिखाऊंगा और उसको मैं रिलेट करूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि ये बात हम लोग कर रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा और सक्सेस होने के लिए किस तरीके से, क्या प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करें कि काम हमारा आसान भी हो जाए, सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़े और काम और भी बेहतर तरीके से डुप्लीकेट हो जाए, हम भी आगे बढ़े, हमारी टीम भी आगे बढ़े, यूनाइटेड होकर काम करें। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल हैं जो फॉलो करने चाहिए, वो एक प्रेजेंटेशन के तहत मैं आप लोग को दिखाऊंगा, राइट? तो अगला जो 40-45 मिनट है वो आप सभी से रिक्वेस्ट है लगातार देखना। अगर बीच में एक भी स्लाइड आगे पीछे अगर मिस करके आगे बढ़ोगे तो फिर तो बात वही हो गई ना, क्लास में गए और
हर आधे घंटे में ब्रेक लेके बाहर जा रहे हैं, फिर आके क्लास अटेंड कर रहे हैं, अल्टीमेटली लास्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? तो समझ में नहीं आएगा तो इतना समय इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल टाइम। यार ये जो हम लोग जो समय दे रहे हैं ना, ठीक है, क्वालिटी टाइम की जब हम लोग बात करते हैं, इस बिजनेस में लोग कहते हैं ना हम तो 4 घंटे काम करते हैं साहब, हम तो 5 घंटे काम करते हैं, डेली का काम करते हैं, मैं तो फुल टाइम लगा हुआ हूँ। अरे फुल टाइम में कर क्या रहे हो? पोटेंशियल टाइम कितना दे रहे हो? फुल टाइम में आप कभी आपने सेल्फ इवैल्यूएट किया कि हमने अगर सुबह से लेके, अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो तो सुबह 8 बजे से भी स्टार्ट करते हो, 10 बजे भी से स्टार्ट करते हो, रात को 11 बजे तक आप कितना काम किए, क्या था आज? आप सेल्फ इवैल्यूएट कभी आपने अपने खुद को किया क्या कि हमने आज दिन भर क्या किया? जब खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करोगे तो बहुत कुछ आपको मालूम चल जाएगा, राइट? उसी चीजों के बारे में बहुत सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको एक बताऊंगा। मेरी प्रेजेंटेशन की रफ्तार हो सकता है थोड़ी तेज हो, इसलिए लगातार सुनना। मेरी आई होप कि मेरी आवाज क्लियर होगी, राइट? और राइट, थैंक यू मीना जी। और हम लोग देखिए प्रेजेंटेशन जो मैं दिखाऊंगा उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद कुछ लोग उससे आप लोग को फायदा मिले, या आप लोग कुछ लोग कन्विंस भी होंगे कि नहीं यार बात तो सही कह रहा है ये, राइट? कुछ लोग हो सकता है कि उनके व्यूज अलग हों। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबके व्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? इसको बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं लेकर चलना है, बट आप मोटा मोटा गेम समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअली में होता क्या है और क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूं। जस्ट अ मिनट। देखिए मैंने अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शेयर किया है, आप स्लाइड मेरे ख्याल से ओपन हो गया होगा, राइट? और ये हो गया होगा अभी फुल स्क्रीन। अरुण जी एक बार ये फुल स्क्रीन आ गया आपके, मतलब दिख रहा है, क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दें, राइट? यस सर, आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप अपने बारे में, हालांकि जयंता बिहारी जी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, इनफैक्ट बहुत कुछ ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा, बट मैं राकेश कुमार नाम है और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। इस इंडस्ट्री में मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास 50 साल का या 25 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस वो होता है जो काम में आए, ठीक है? तो मैं अगर मैं एटमी की बात करें तो मैं आज जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पहले भी एसोसिएटेड रहा हूँ, मीडिया इंडस्ट्री में काम किया हूँ, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी से मतलब उनके साथ उठना बैठना रहता है, राइट? लेकिन एज फार एज एटमी ग्लोबल इज कंसर्न, मेरे पास वही 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके पास है, उससे ज्यादा नहीं, राइट? तो हम लोग आज सबसे पहले जो बात आपसे स्टार्ट करने वाले हैं, मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं देखना, आप एक चीज पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, अगर आप इसको रिपोर्ट को एनालिसिस करोगे और आप रिपोर्ट को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत अप्रॉक्स 98% लोग, 95 to 98% लोग अप्रॉक्स बिजनेस के अंदर बहुत स्ट्रगल करते हैं, और अल्टीमेटली उसमें से काफी लोग बिजनेस से आउट भी हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो कर नहीं पाते हैं। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है इस इंडस्ट्री में आकर फेल हो जाते हैं। फेल के पीछे भी एक रीजन है। आप फेल का डेफिनेशन क्या होता है इस इंडस्ट्री में? आप फेल किसको बोलोगे? फेल उनको बोलते हैं जो छोड़ दिया, जिसने बोला कि बॉस मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है? लेकिन जो व्यक्ति 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ट्राई कर रहा है, जब तक वो कोशिश कर रहा है तब तक वो सर्वाइवल स्टेज में है और इंडस्ट्री में है। लेकिन जिस दिन आपने कोशिश करना छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने भी बिजनेस में काम करना छोड़ दिया, कोशिश करना छोड़ दिया, ट्राई करना छोड़ दिया, आप समझ लेना कि वो पर्टिकुलर पर्सन इस इंडस्ट्री में फेल हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस में आना और बिजनेस के अंदर सक्सेस पाने की जो बीच की जर्नी है ना, वो हर लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है किसी को सर्टेन टाइम के अंदर मिल जाए, किसी को पहले मिल जाए, किसी को बाद मिले। एक स्ट्रगल जो है ना, एक स्ट्रगल का जो फेज है वो सबको फेस करना है। कोई पहले करता है, कोई बीच में करता है, कोई बाद में करता है। सेम थिंग आप देखो कॉर्पोरेट के अंदर भी होता है। कॉर्पोरेट या किसी भी लाइफ में आप चले जाओ, कुछ लोग आप देखते होंगे कि आपके ही एज ब्रैकेट के, अगर आपकी एज 35 है या 30 है, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, जो भी आप जिस एज ब्रैकेट में है, आप देखना एक चीज, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको देख के ये लगेगा कि यार ये तो मेरे बराबर है, मेरी उम्र में तो मेरे बराबर का, लेकिन बहुत आगे निकल चुका है ये, राइट? तो इसका मतलब आप ये नहीं समझे कि वो अगर आगे बहुत निकल चुका है तो वो लाइफ का रेस जीत गया। हो सकता है आखिरी 100 मीटर में आप कुछ छलांग मार दो, राइट? पॉसिबिलिटी है। हर एक लोगों को लाइफ में मौका मिलता है, मौके को समझना, मौके को तलाश करना और मौके पे सही डिसीजन लेना, यही है गेम, राइट? आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को मैं बताता हूँ फुल टाइम वर्सेस पार्ट टाइम। इस बिजनेस में सबसे पहले लोगों के मन में क्या सवाल आता है, ये बिजनेस फुल टाइम है या पार्ट टाइम है? होता है ही नहीं होता है? हर एक लोगों के लाइफ में ये सवाल उठते हैं।
फुल टाइम पार्ट टाइम का जो क्वेश्चन सवाल जवाब है सबके जहन में आता है। कोई बोलता है मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। फुल टाइम का क्या डेफिनेशन है, पार्ट टाइम का क्या डेफिनेशन है, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। ये बिजनेस पार्ट टाइम करके हम लोग एक समय बोला जाता था, कई लोग पार्ट टाइम बोलते थे। इस बिजनेस को फुल टाइम करना भी पॉसिबल है, पार्ट टाइम करना भी पॉसिबल है। लोग फुल टाइम करके भी आगे बढ़ जाते हैं, लोग पार्ट टाइम करके भी आगे बढ़ जाते हैं। पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग वर्क के साथ, चाहे गवर्नमेंट बिजनेस कर रहे हो या आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो या आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो और साथ में आपने इस बिजनेस को बिल्डअप किया एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। दैट मींस कि आप जो इसमें इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम काम कर रहे हो, मतलब सर्टेन टाइम दे रहे हो, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय दे रहे हो, ठीक है ना। तब आप अपने एग्जैक्ट जो आपका जो प्राइमरी वर्क है उसके साथ साथ जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हो तो दैट इज कॉल्ड पार्ट टाइम, ठीक है ना। पार्ट टाइम बिजनेस और एक फुल टाइम बिजनेस, ठीक है। फुल टाइम के अंदर क्या होता है, कई लोग इस बिजनेस में जब एक लेवल को अचीव कर लेते हैं, जब लेवल को अचीव करने के बाद इमीडिएटली वो अपने आप को फुल टाइम शिफ्ट कर लेते हैं। फुल टाइम का मतलब होता है सुबह शाम से लेकर रात तक सोने समय तक आप केवल एडमी की बातें कर रहे हैं, ग्लोबल आप इस इंडस्ट्री के बारे में बातें कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुल टाइम, राइट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या शुरू हमें बिजनेस इसे फुल टाइम स्टार्ट करना चाहिए, पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहिए? एक अलग अलग प्रोग्राम है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसके ऊपर अभी हम लोग जाएंगे तो लंबा चला जाएगा, मैं प्रेजेंटेशन को बिल्कुल टाइम पे क्लोज करना चाहता हूँ। ये डिसाइड कीजिए आज रात में बैठ करके आप लोग अपने घर में कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो। अगर फुल टाइम कर रहे हो तो ये भी डिसाइड कीजिए कितने घंटे काम कर रहे हो। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो ये भी डिसाइड कीजिए कि आप कितने घंटे काम करते हैं, कितना समय लगाते हैं, क्या आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम को फॉलो करना पार्ट टाइम में भी पॉसिबल है, फुल टाइम के अंदर भी करोगे तब भी पॉसिबल है, राइट। ऐसा कुछ नहीं कि फुल टाइम वाले ही सिस्टम को फॉलो करेंगे, पार्ट टाइम वाले नहीं कर पाएंगे, दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, राइट। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो कितना घंटा लगाते हैं इसको नोट डाउन कीजिएगा, राइट। पोटेंशियल टाइम निकालेंगे हम लोग, आगे बताता हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में 2-3 फंडे हैं जो आप लोग को समझना पड़ेगा, राइट। इस बिजनेस में आने के बाद एक बड़ी एक क्लासिक चीजें हैं जिसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ना बिजनेस में आने के बाद लोग बाग जो है अकाउंटेबिलिटी में के अंदर आके काफी बार फंसते हैं, मतलब वो हिसाब किताब में गड़बड़ा जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हर जगह केवल बिजनेस की अकाउंटेबल होना नहीं होना के साथ साथ सिस्टम को लेकर के अपलाइन डाउनलाइन के बीच में रिलेशनशिप को ये दर्शाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कितने कमिटेड हो अपने अपलाइन के प्रति, आप कितने कमिटेड हो अपने डाउनलाइन के प्रति, आप कितने कमिटेड हो अपने क्रॉस लाइन के प्रति, आप कितने कमिटेड हो आप अपने कंपनी के प्रति, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को अलग अलग तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो इस बिजनेस को लेकर, अपने टीम को लेकर, अपने टीममेट्स को लेकर के, अपने डाउनलाइंस को, अपने ग्रुप को लेकर के आप कितने अकाउंटेबल हो, राइट। आपके अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना ओनरशिप लेके आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का ये स्लाइड अगर चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो मोरल की बातें हो, चाहे लायबिलिटीज की बातें हो, चाहे वैल्यूज की बातें हो, चाहे ऑनेस्ट की बातें हो, एथिक्स की बातें करें, ट्रस्टवर्थनेस की बातें करें, राइट, ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। यानी कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको अपने आप को हर एक पैमाने पे अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस में अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने क्रॉस लाइन और इस मैनेजमेंट कंपनी के सामने रख के उनके सामने आपको अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, राइट। अगर आप बिजनेस में किसी को लेके आते हो दैट मींस यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर आप बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस व्यक्ति के साथ सही ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या लोगों के आईडी क्रिएट करा के हम लोग छोड़ देते हैं क्या? अगर आप छोड़ दे रहे हो कि वो आएगा कुछ खुद ब खुद करेगा, दैट मींस यू आर नॉट अकाउंटेबल इन दिस बिजनेस, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आपको पहले खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, देन हम लोग उसको अपने टीम में नीचे लेके जा सकते हैं, राइट। दैट मींस अकाउंटेबिलिटी एक मेजर पार्ट होता है जहां पे लोग फंस जाते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं ये जो बातें आपसे कह रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंसान इस बिजनेस में आने के बाद मेजॉरिटी के अंदर आप देखोगे कई लोग इसमें फील करते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, यार मैं कर रहा हूं हो नहीं रहा है, मैं कोशिश करता हूं, मैं सुबह शाम लगा देता हूं, मैं फोन पे बात करता हूं, मैं 4 घंटे फोन पे ही रहता हूं, मैं 5 घंटे फोन पे रहता हूं, मेरे अपलाइन से बात चल रही है, मेरे डाउनलाइन से बात चल रही है, वहां पॉलिटिक्स हो गया, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। असफलता, मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग, असफलता केवल यही दर्शाता है कि पूरी आपने मेहनत को पूरे लगन से नहीं किया। कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है साहब।
अगर आप जीवन में फेल हो जाते हैं, लाइफ में कभी कोई बड़ा झटका मिल जाता है, उसके आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने किया तो था, मेरे से हुआ नहीं। वो एक्सक्यूज है, नथिंग एल्स। अगर आदमी शिद्दत से काम करेगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर रोक रही है और आप रुक जा रहे हो, दैट मींस कि आपने वो काम शिद्दत से कर ही नहीं रहे हो, उसको पार्ट टाइम लेके चल रहे हो। पार्ट टाइम में भी लोग, पार्ट टाइम का डेफिनेशन लोगों ने अलग बना दिया। पार्ट टाइम का मतलब जानते हैं क्या होता है? पार्ट टाइम का मतलब होता है एवरी डे 3 आवर्स, एवरी डे 2.5 घंटे, 2 घंटे पोटेंशियल टाइम, क्वालिटी टाइम। 2 घंटे 2.5 घंटे अगर आप इस बिजनेस को दे रहे हो अपने अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर जॉब, दैट मींस वो आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम को लोग पार्ट टाइम को तो कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम मिला तो कर लेंगे, समय मिला तो मीटिंग अटेंड कर लेंगे, ठीक है, नहीं मिला तो देखते हैं, मीटिंग तो रोज होती है, ये तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तो आए दिन मीटिंग होती रहती है, ये छूट गया तो कल कर लेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब समय पड़े हैं वर्षों, ठीक है। तो इस फंडे में लोग अपने आप अपना सारा अकाउंटेबिलिटी को बिगाड़ लेते हैं। तो हमें क्या काम करना है? देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ना, लोग फेल क्यों होते हैं, लेकिन वही चीज को अगर आप सही कर लोगे तो वही जरिया बन जाएगा सक्सेस होने का। जिसके अंदर पहला पॉइंट मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, पार्ट टाइम और फुल टाइम के बारे में मैंने आपसे बात की, सेकंड मैंने अकाउंटेबिलिटी की बात की, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन करना, देखिए हर वक्त अपलाइन आपके सर पे सवार नहीं होगा जो आपको एक एक हाथ घड़ी घड़ी आकर के आपको सेल्फ इवैल्यूएट करके बताए कि देखो तुम ऐसे काम करो, तुम गलत जा रहे हो, ऐसे नहीं करना। एवरी टाइम अपलाइन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू ना, आपके लिए वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा बॉस, नहीं करोगे कोई दूसरा आदमी नहीं। इस बिजनेस में लोग क्या डिपेंडेंसी बहुत बना लेते हैं, मेरा अपलाइन, मेरा अपलाइन। अपलाइन कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। अपलाइन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, अपलाइन ने आपको बिजनेस में लेकर के आ गए, उसने वहां पे आपके साथ सिस्टम को शेयर करा, दैट्स इट। बाकी आपको अपने खुद के लेवल पे काम करना पड़ेगा। सेल्फ इवैल्यूएट के अंदर सोट एनालिसिस एक चीज होती है जिसको आप लोग, अगर आप किसी किताब में पढ़ोगे बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्ट में चलता हूँ। स्टेट आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा, मैं आपके वीकनेस के बारे में बात करूंगा, थ्रेट के बारे में बात करूंगा, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूंगा, है ना। इस बिजनेस में जब आप आते हो, इस बिजनेस में आने के बाद सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मेरी स्ट्रेंथ क्या। हर लोग क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद क्या हर लोग नेटवर्क बनाने का मास्टर है क्या? किसी का स्ट्रेंथ होता है रिटेलिंग करना, किसी की स्ट्रेंथ होता है सिस्टम को फॉलो करना, किसी की स्ट्रेंथ होता है कि उसकी पीआर बहुत स्ट्रांग है, बट वो एबल नहीं है प्लान दिखाने में, वो बड़ा हिचकिचाता है, उसे नहीं हो पाता, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, राइट। लेकिन वो प्लान नहीं दिखा पा रहा, लोगों को समझा नहीं पा रहा, लोगों के पास जाकर के बिजनेस की बात नहीं कर पा रहा। लेकिन उसको जब किसी को मीटिंग होती है, जब बंदा किसी को बुलाता है तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक झटके में आ जाते हैं। दैट मींस उसने मार्केट में अपनी पीआर बनाई है, उसकी मार्केट में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो बंदा प्रेजेंटेशन देने में वीक है या बिजनेस के बारे में बताने का। तो ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए कि मेरा स्ट्रेंथ ये है, और आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। अपने स्ट्रेंथ, देखिए हर आदमी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको समझिए, एनालाइज कीजिए और उस पर ताकत झोंक दो जितनी झोंक सकते हो। अगर आप रिटेलिंग करने में मास्टर हो तो आप हिंदुस्तान का नंबर 1 रिटेलर बन के दिखा दो। आप दिखा दो अपने सारे आप वीडियोस क्लिपिंग बना बना के दुनिया को दिखा सकते हो कि आप देखो मेरे जैसा रिटेलर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। आप अपनी स्ट्रेंथ रिटेलिंग करके भी आप यहाँ पे कमाल कर सकते हो, राइट। उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी वीकनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको ताकत बना लो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओ। एक्सट्रीम लेवल आप समझ रहे हैं? अगर आपको रिटेलिंग में मजा आता है तो उसको एक्सट्रीम लेवल पे जाओ। मतलब एवरी डे आप 4-5 पैकेट हीमोहिम निकाल रहे हो, एवरी डे आपके पास भीड़ लगी हुई है, डेली सुबह शाम फोन आ रहा है, यार वो 5 डब्बे स्पिरुलिना भेज देना, यार हीमोहिम पड़ा है क्या आपके पास, अच्छा ये प्रोडक्ट पड़े हैं क्या, ये भेजो वो भेजो। आपके मार्केट में इतने कंज्यूमर होने चाहिए, हजारों कंज्यूमर होने चाहिए कि आपको सांस लेने के भी समय नहीं मिले, ठीक है। अगर उस तरीके की आपकी पावर तो उस लेवल पर आप लेकर जाओ, स्ट्रेंथ अगर आपकी है तो बाकी चीजें अपने आप डेवलप हो जाएंगी। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप अपनी वीकनेस के बारे में भी देखो कि आपके अंदर वीकनेस क्या है। आप बोलोगे मेरे अंदर वीकनेस है कि यार मैं प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने में मुझे बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। जब आदमी के अंदर वीकनेस है तो स्ट्रेंथ भी होगा। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रेंथ पे काम करो, वीकनेस के फोकस करो। स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ पे आप अपना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, वीकनेस पे काम करो और देखो कि थ्रेट क्या है मार्केट में आपके पास और आसपास में क्या थ्रेट है।
क्या दिक्कत आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज अगर मेरे साथ हो गई तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्या थ्रेट है, उसको आप सिर्फ इवैल्यूएट करो और मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज क्या है वो भी देखें। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि किस सोसाइटी में जाके मैं एंटर कर सकता हूँ जहां पे मैं अपने कंपनी के बारे में बात कर सकूं, कौन सी सोसाइटी के अंदर जाऊं, किस कॉर्पोरेट को मैं टच करूं, कौन से अलग अलग फील्ड में जितने भी यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, राइट, बिजनेस कम्युनिटी है, कहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ जहाँ पे मैं अपने बिजनेस को बिल्डअप कर पाऊँ। तो ये आपको तगड़ा देखना पड़ेगा। जैसे आज मैं मार्केट में हूँ, मैं अपना एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ कि मैं वेल कनेक्टेड हूँ अपने स्टेट के अंदर, मैं हर तरीके के जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है वहां पे मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठते हैं जयपुर के अंदर, मैं उन सबसे मैं वेल कनेक्टेड हूँ, राइट। ये क्या, कौशल कुमार पटेल इज रिक्वायरिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन, मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ फिलहाल, है ना, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात जो कर रहे थे अपने स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे थे, अपने वीकनेस के ऊपर बात कर लिया, थ्रेट के ऊपर बात कर लिया, ये सारी चीजें आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है। नोबडी विल टेल यू अबाउट दिस, आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आपको इस बिजनेस में सर्वाइव करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कुछ काम आपको खुद से करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है आज करो 2 महीने बाद करो 2 साल के बाद करो, करना तो पड़ेगा, राइट। इसको मन में, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझ लो, और कोई तरीका नहीं है इस बिजनेस को करने का। डोंट वेट फॉर दिस, इंतजार मत करो कोई तीसरा आदमी आएगा वो आपको ऊपर उठा के ले जाए, कुछ नहीं होने वाला। करना है तो राइट नाउ, अभी इसी वक्त से काम स्टार्ट कीजिए अपने ऊपर, राइट। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे, एक तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जीरो कॉस्ट एक एंट्री होती है, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट आप बिजनेस में एंटर हो जाते हो और विदाउट एनी कॉस्ट आप बाहर भी निकल जाते हो। बैठ, इसका मतलब ये है कि जब इंसान के पॉकेट के पैसा निकलता ही नहीं ना, तो इन्वेस्टमेंट जब कुछ होता नहीं है तो उनको बिजनेस समझ में नहीं आती। ये हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन अब उनको समझना चाहिए, अब समय आ गया है समझने की है। आपके पास आज D2C ब्रांड के बारे में इतनी प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, D2C ब्रांड के अंदर जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है ना। डायरेक्ट टू कंज्यूमर के अंदर इतने सारे ब्रांड हिंदुस्तान में आ चुके हैं, 800 से ज्यादा ब्रांड आज डेट में हिंदुस्तान में काम कर रहा है, 800। और जितने भी ब्रांड है, अभी मैं नाम उस पर अलग से नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना आप समझ लो 800 से ज्यादा ब्रांड हिंदुस्तानी कंपनी, इंडिया की कंपनी 800 प्लस जो है D2C ब्रांड बन चुका है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 साल में 800 नई कंपनी बन के खड़ी हो गई। और क्या इनके पास फंडिंग थी? इनके पास क्या करोड़ों अरबों रुपए थे? उसमें से कुछ नाम अगर आप सुनना चाहो तो नाम भी मैं बता दूंगा। लेंसकार्ट के नाम ले लो आप, उसमें अगर आप देखो जोमेटो का नाम ले लो, उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज हैं, मेकअप करके आप देखोगे, जैसे वाओ करके एक ब्रांड है, राइट। और भी उसके अलावा कई सारे ब्रांड हैं जिसमें अब जैसे लिशियस करके एक ब्रांड है, राइट। ये सारे जो ब्रांड D2C के ब्रांड है, इनको कितने समय हुए? 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, उससे ऊपर के नहीं है ये लोग। और ये सब हजार हजार करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच चुके हैं। क्या इनके पास इतने पैसे थे इन्वेस्टमेंट करने के? नहीं, इनके पास एक आइडिया था, एक सिस्टम था काम करने के लिए, और वहां से लोग, वो बंदा काम करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। इन द सेम वे हमारे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास जितने, हमारी ताकत क्या है, हमारा एसेट्स इस बिजनेस में है लोग, यानी कि हम लोगों के पास जा सकते हैं इस बिजनेस को लेकर। यही काम बाकी D2C ब्रांड भी कर रहे हैं, वो लोगों के पास जा रहे हैं। एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई, वाओ करके एक कंपनी है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, वाओ करके कंपनी है जो कॉस्मेटिक के ऊपर काम करती है, ब्यूटी केयर के ऊपर काम करती है। उसने कैसे स्टार्ट किया? फेसबुक कैंपेन, दैट्स इट। उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना बैठाया, छोटा सा प्लांट सेटअप किया, वहां से कुछ प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया, देन वहां से टेक्नोलॉजी, बाहर से टेक्नोलॉजी ली, अपना बनाकर प्रोडक्ट बनाकर तैयार किया, फेसबुक पे मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहां से गेम स्टार्ट होता है, करते करते कंपनी हजारों करोड़ की कंपनी आज के डेट में खड़ी हो जाती है। ये काम हम भी तो कर सकते हैं। उसने तो मैन्युफैक्चरिंग की, उसने पूरा सेटअप बैठाया बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उसके पास दिमाग था। हमें तो दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं। हमारा सेटअप कौन करके रखा है? एटॉमिक ग्लोबल, जो हमारी मैनेजमेंट बैठे हैं, मिस्टर अब्राहम ली जो MD हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने एक सिस्टम बनाकर दे दिया। मिस्टर हैंगल पार्क ने एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया कि आप इस बिजनेस को ऐसे बिजनेस करो, कहीं कोई शॉप खोलने की जरूरत नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, दुकानदारी करने की जरूरत नहीं, अकाउंटेबिलिटी करने की कोई जरूरत नहीं। अकाउंटेबल इन द सेंस कि कोई हिसाब किताब बिजनेस रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ तो आपके ऐप पे ही है, राइट। तो बिजनेस को आपके लिए और आसान कर दिया गया। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इस बिजनेस को केवल आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग लेके मत चलना। आप इस बिजनेस को देखो कि मेरे पास एक ब्रांड है और मैं उसका क्या हूं? ब्रांड एम्बेसडर। तो अगर मेरे एक प्रोडक्ट है हिमोहिम,
तो उसको मैं पूरे हिंदुस्तान में कैसे प्रमोट करूं, क्या तरीका है, मैं उनको लोगों तक कैसे पहुंचाऊं? दिमाग लगाइए, आपके पास प्लेटफॉर्म सारे हैं और कहीं कोई इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए लगाने की भी जरूरत नहीं, छोटे छोटे पैसे में प्रमोशन हो जाता है। और आपके पास तरीके बहुत हैं काम करने के लिए, अपने जैसे 10 लोगों को ढूंढ लो, वही काम वो लोग भी करेंगे, काम आपका मल्टीप्लाई हो गया, काम समय सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है, काम धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है, राइट। लेकिन आपको उस एंगल पे आके सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि चलो ठीक है यार आईडी लगा दी, देख ले करते हैं, मीटिंग में आए 10 दिन 1 महीने से मीटिंग ही अटेंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। स्मार्ट पीपल टेक क्विक डिसीजन, आई एम टेलिंग यू गाइस, इस चीज को आप समझना, जो स्मार्ट होते हैं वो इमीडिएट डिसीजन लेके काम करते हैं, और जो थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं वो महीनों महीनों सालों साल लगा देते हैं इस बिजनेस में, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता। करेक्ट, ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर जो हमारे यहाँ 0 एंट्री कॉस्ट है और 0 एग्जिट कॉस्ट है, मतलब आने में कोई कॉस्ट नहीं, जाने में कोई कॉस्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर उसको हम दूसरे पहलू देखें कि भाई इतना शानदार बिजनेस है कि यहाँ पे कोई कॉस्ट ही नहीं है एंटर करने के लिए, आप निकलने की बात छोड़ दो, आप बोलो कि हमें एंट्री करने के लिए कोई कॉस्ट ही नहीं देना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप एक ऐसे 18 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को, भले ही वो साइकिल चलाता हो, रिक्शा चलाता हो या कोई ऑटो चलाता हो, बिजनेस तो हर लोगों की रिक्वायरमेंट है। कंज्यूमर हर लोग बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। क्या ये 15-15 हजार के हिमोहिम, 12 हजार के हिमोहिम कौन परचेस करेगा, कौन देखेगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन। उसके लिए आपको टारगेट ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज बिजनेस पॉइंट इज कंसर्न, बिजनेस की जब हम लोग बात करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट तो हर लोगों को है, हर लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, एवरीबॉडी कैन डू दिस बिजनेस, राइट। आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे मिनिमम क्वालिटी टाइम का मतलब सिंपल आप समझ लो कि आदमी क्या है ना, बिजनेस में इन्वॉल्व तो है लेकिन क्वालिटी टाइम देता नहीं है। जब फुर्सत होता है तो बिजनेस करते हैं, फुर्सत नहीं मिला तो टाइम नहीं मिला छोड़ दिया, राइट। तो जो आप इस बिजनेस में दोगे वही आउटपुट निकलने वाला है मेरे दोस्त। आप दोगे हवा तो मिलेगा हवा, राइट। इस बिजनेस में अगर आप समय दोगे, पैसा लगाओगे तो इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम भी मिलेगा और मनी फ्रीडम भी मिलेगा। अगर आप समय लगाते हो, पैसा लगाते हो इस बिजनेस के अंदर, पैसा इन द सेंस सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सीखने के ऊपर अगर आप काम करते हो ना, वो चीज आपको रिटर्न बैक मिलेगी इस कंपनी में। 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है। लेकिन आप इसमें बिजनेस में टाइम नहीं दोगे, आप सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ आ जाए, नॉट पॉसिबल। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आप लोग बोलते हैं यहाँ पे लर्निंग बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यहाँ पर सिंपल ये चीज समझिए, लोग सीखते सब कुछ है, ट्रेनिंग बहुत ले लेते हैं। ट्रेनिंग इतनी मिल जाती है कि लोगों को लगता है कि बॉस हो गया, और ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके ही उनको लगता है कि यार काम हो गया, शानदार, बढ़िया, समझ में आ गया बहुत। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे मार्केट में, वो लर्निंग जीरो है, जीरो। आपको मैं एक बात बताऊं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मैनेजमेंट की पढ़ाई किए होंगे, राइट। एमबीए जब हम लोगों ने किया तो पढ़ाई जब तक 4th सेमेस्टर में आए, ठीक है ना, तो जो हमने सीखा किताबों से, उसके बाद जब मार्केट में उतरे और जब हम लोग कॉर्पोरेट के अंदर काम करना स्टार्ट किए, तो हमारी 2 साल की बुकिश नॉलेज और 6 महीने का प्रैक्टिकल नॉलेज बराबर। 6 महीना भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 महीने पकड़ लो। 4 महीने की जो वर्किंग हम लोगों ने शुरुआत में की ना, वो बिल्कुल वहां से जो लर्निंग मिली वो 2 साल की पढ़ाई के बराबर। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग लोगे ना, और ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप उसको मार्केट में इंप्लीमेंट करते हो, मतलब आज इस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद अपने घर पे जाके सेल्फ इवैल्यूएट करो कि पिछले 1 महीने में आपने क्या किया इस बिजनेस के साथ, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को प्लान दिखाया, क्या क्या किया आप लोग। सारी चीजें जब आप देखोगे ना, सेल्फ इवैल्यूएट करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप इस बिजनेस में सीरियसली कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। सेल्फ इवैल्यूएट करके देखिए, आपको कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी और आप अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता गलती हो भी रही है, गलती रोज करते हैं लेकिन कोई बताने वाला नहीं, ठीक है ना, कोई थर्ड पार्टी आकर आपको नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, जब आप सेल्फ इवैल्यूएट खुद से करना जानना सीख लेते हो एक बार, राइट, तो आपको डेली बेसिस पे कैलकुलेट कर लो कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितना और करना चाहिए, क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे निकल सकती है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम है जो हमारे हिंदुस्तान में, जब आप देखोगे जहां से भी आप बिजनेस को जब स्टार्ट करते हो ना, बिजनेस को स्टार्ट करते ही जो है एक माइंडसेट जो है सुबह उठते के साथ बन जाता है, वो है नेगेटिव माइंडसेट। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं है कि हर के घर में होगा, बट मेजॉरिटी में आप देखोगे सुबह उठते के साथ एक आदमी की जो माइंडसेट है ना, वो नेगेटिव माइंडसेट रहता है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं करोगे, सुबह उठते ही आपको नेगेटिविटी दिखनी चालू हो जाती है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो क्या करते हो, वॉक पे जाते हो, वॉक पे नहीं गए, घूमने फिरने कहीं भी गए, तो आदमी को कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज दिखने लगती है, अरे यार कचरा फेंक दिया यहाँ पे, बताओ यार
कि अगर गाड़ी कैसे लगा के चला गया यार, अब नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाता है। और जब आपकी शुरुआत नेगेटिव थॉट से होती है तो होल डे आप हर चीज में नेगेटिव ढूंढना चालू कर देते हो और अनफॉर्चुनेटली आपको पता भी नहीं चलता है कि मैं नेगेटिव हूँ। कोई बोलता भी नहीं है यार तुम कैसे है, तुम बहुत नेगेटिव आदमी हो यार, कोई नहीं बोलता करके। तो हम लोग उसी ढर्रे पे रोज काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमें उस माइंडसेट से भी कई बार बाहर निकलने की जरूरत होती है। इस बिजनेस में आने के बाद हम लोग क्यों कहते हैं कि सुबह उठते के साथ कोई आप अच्छी सी वीडियोस देखो जिसको आप फॉलो करते हो, रात को सोने समय कोई अच्छी सी किताब देखो, किताब पढ़ो, किताब से दोस्ती कर लो, उससे बड़ा दोस्त नहीं मिलेगा। लीडर विडर सब अपने अपने जगह पे है। अच्छी किताबों से पढ़ाई करो, अच्छी किताबों से दोस्ती कर लो, जीवन में बहुत कुछ देगा वो आपको शायद अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बुक इज द उसको मैं क्या बोलूं कि उससे सच्चा दोस्त नहीं मिल सकता आपको इस पूरे पृथ्वी पे, राइट। वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे को है आदत है पढ़ने की, राइट। उस तरीके से आपको भी हैबिट डाल लेनी चाहिए। अगर आप ये काम करते हो तो 100% आपकी जो नेगेटिव माइंड से धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पे हमें काम करना चाहिए। एक बिजनेस के अंदर बहुत ही मेजर प्रॉब्लम लोगों के साथ है, वो ये है कि लैक ऑफ राइट स्किल सेट, ठीक है। स्किल इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट है दोस्त, मतलब आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को अपलोड करना पड़ेगा। सिस्टम है जो हमारे करंट सिनेरियो है मार्केट के अंदर, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अपग्रेड करना ही, नहीं करोगे बाहर फेंका जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारे हिंदुस्तान में कई सारी कंपनीज हैं जो आउट ऑफ मतलब BSNL नहीं टिका ना, नहीं टिक पाया, खत्म हो गया। उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बट ऐसे ऐसे कई सारे घने कंपनी है जो मार्केट में आज के डेट में आपको दिखने वाले नहीं है क्योंकि आउट हो चुके हैं। नोकिया कैसे बाहर चला गया सिस्टम से और आज वो फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है वापस से मार्केट में एंट्री करने का, लेकिन इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी वो एंट्री नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने सही समय पे अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। इस बिजनेस में भी जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, आज से 2 साल के बाद लगेगा अरे यार ये तो बड़ा हाईटेक बातें कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद हम लोग वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करने वाले हैं। यही राकेश कुमार आपको सिस्टम में दिखेगा, यही राकेश कुमार आके वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो कंपनी कुछ लॉन्च कर देगी उसके बारे में मैं आपको वहां बता रहा हूँ। आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा यार बात क्या बोल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से आ गया। इस बिजनेस में तो हम लोग इंसानों की बात कर रहे थे, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपने आपको एक बैक आपको लगा यार बॉस पता नहीं क्या बातें होती मीटिंग के अंदर, आप मीटिंग में आओगे ही नहीं। जरूरत क्या है, जरूरत है धीरे धीरे करके आप अपने आप को यहाँ पे अपग्रेड करते चले जाओ, राइट, सीखते चले जाओ। सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग से जो बातें की वो अलग चीज थी। अब हम लोग बात करेंगे सक्सेस प्रिंसिपल। बड़ा शॉर्ट में मैं एक बार टाइम दे देता हूँ, 9:12 हो रहा है, 10 मिनट के अंदर मैं क्लियर कर दूं। बने रहना हमारे साथ लगातार, ठीक है ना। सक्सेस प्रिंसिपल्स जो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में प्रिंसिपल बनाना चाहिए आपका एक खुद का एक सोचने का तरीका, ठीक है ना, जिसको सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत तो बनाना ही पड़ेगा ना, एक प्रिंसिपल बना के आप उसको फॉलो करो। ये नहीं लाइफ होना चाहिए मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, 2 नंबर का कमाने का मौका मिला तो कमा लेंगे, नहीं मिला तो नहीं कमाएंगे, ऐसा नहीं। लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाइए कि मैं अपने देश के लिए करना चाहता हूं, मैं अपने समाज के लिए करना चाहता हूं, मैं अपने फैमिली के लिए करना चाहता हूं। फैमिली इज फर्स्ट। जो भी आपको समझ में आता है आपको एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा और उस प्रिंसिपल को आपको जीवन भर मरते दम तक, जब तक आखिरी सांस लोगे तब तक आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आप अपने प्रिंसिपल को डराइव कीजिए और उसके बाद उसको फॉलो कीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, राइट। बात हम लोग करेंगे यहाँ पे आज 2023 में डायरेक्ट सेलिंग, आपके सक्सेस प्रिंसिपल्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्रोफेशनल वर्सेस अनप्रोफेशनल अप्रोच। यहाँ पे कुछ बातें ऐसी मैं बोलूंगा, हो सकता है कि आप लोग को लगे कि यार मेरे को ही बोल रहा है क्या। देखिए कुछ चीजें बदल लो, आप लोग जितनी जल्दी बदल सकते हो। बिजनेस मीटिंग जब होता है, बिजनेस मीटिंग के कुछ एटिकेट्स होते हैं। बिजनेस मीटिंग्स के एटिकेट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये बिजनेस को हल्के मत लेना, ये बिजनेस सपनों का बिजनेस है। जब बात हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं, नौकरी क्या है, जॉब इज जस्ट गिविंग यू सर्वाइवल, आपको एक जीवन दे देता है कि सर्वाइव कर लो, अपनी बेसिक नेसेसिटी कर लो, गाड़ी मेंटेन कर लो, एक घर खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना बहुत। एक फ्लैट लेना, एक हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, एक महीने का, चलो बच्चे हैं स्कूल में जा रहे हैं, अपना खर्चा पानी, इधर काम जाम, घूमना फिरना सब कुछ, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, राइट। बेसिक नेसेसिटी जो है वो एक जॉब से मिल जाता है यार, करेक्ट। अगर आपको ढंग की प्रोफाइल में अगर काम करो तो ये सब चीजें आप निकाल लोगे। बट व्हाट अबाउट योर ड्रीम? आज मेरी ड्रीम क्या है? मैं ड्रीम ये है कि मैं चाहता हूं कि 1 महीने का मैं टूर निकालूं। मैं पिछले 6 साल से मैं 1 महीना तो छोड़ो, मैं लगातार 20 दिन छुट्टी नहीं ले पाया आज तक।
दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैं चाह के भी 15 दिन का मैं लीव लेके बाहर नहीं निकल सकता, इतने सारे वर्कलोड होते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, नहीं कर सकते आप। मेरा ड्रीम क्या है? मैं ड्रीम है कि समय मेरे हिसाब से मैं अपने लिए कुछ कर पाऊं और अपने फैमिली के लिए अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस मैं उस चीज को जीना चाहता हूं, बट वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, राइट? अब इस चीज को आपको जब बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं ड्रीम की, जब बात आपसे मैं ड्रीम की कर रहा हूं, तो आप सोचो कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए जो आप नौकरी कर रहे हो या मैं कर रहा हूं, ठीक है, उसमें हम 8 घंटा पूरा झोंक देते हैं अपने आप को। आप नहीं भी झोंकोगे तो झोंकने के लिए 4 लोग बैठे हैं ऊपर, आपको कर लेंगे जो करना है, ठीक है। गन्ने के उस मशीन में एक बार जब घुस जाओगे ना, तो सारे तुम चाह भी लो, बचा भी लो, कुछ भी कर लो, जूस तो निकल ही जाता है एक बार में सबके सब, ठीक है ना। वो चीजें होती हैं सर, यहाँ तक क्लियर है आपको? लेकिन जब बात हम लोग सपनों की करते हैं, बात हम लोग जब ड्रीम की करते हैं, इस बिजनेस से क्या आप 2-4 हजार रुपया कमाने आए थे? इस बिजनेस से हम लोग क्या कमाने आए थे? इस बिजनेस से हम लोग ये कमाने आए कि यार एक समय के बाद स्टार मास्टर, इंपीरियल मास्टर बनेंगे, जहां पे 10-12 लाख रुपए की एक महीने की इनकम आएगी। जब 12 लाख 15 लाख महीना कमाना स्टार्ट करेंगे और हमारे पास टीम साइज होगी, स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड कर सकते हैं। ये सब हमारे विजुअलाइज करके इस बिजनेस में हम लोग आए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, करेक्ट। जब बात सपनों की हो रही है, जब बात सपनों की हो रही, नौकरी 8 घंटा, चाहे वो आप 15,000 कमाओ, चाहे आप 15 लाख रुपया कमाओ किसी भी जगह पे, ठीक है ना, तो आप तो बिल्कुल टाइट होके सूट बूट पहन के बैठते हो, करते हो। बट जब इस बिजनेस में आते हो तो आपका एटीट्यूड जो होता है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल हो जाता है। 20-25 एक एवरेज में आपको बताऊं, 20-25 हजार की नौकरी करने के लिए आदमी बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस, ये जूता पॉलिश होना चाहिए, चश्मा बाल सेट होना चाहिए, बिल्कुल घड़ी वड़ी पहन के टाइम पे पहुंच गए, कार्ड स्वाइप कर दिया, यस सर, मॉर्निंग सर, यस सर करके हमने 8 घंटे निकालते हैं। जब बात हम लोग आते हैं कि अब 2-2.5 घंटा जो है पोटेंशियल टाइम हमें अपने बिजनेस के लिए करना है, तो अनप्रोफेशनल अप्रोच, ढीला ढाला होके बैठ जाते हैं। होता है ऐसा ना, घर में आए, मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करना है क्या, अच्छा चलो ठीक है, वीडियो ऑफ करो, सबसे पहले वीडियो ऑफ करो और बिल्कुल अपना गए, अपना आराम से लेट गए, कोई इधर बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। ये अनप्रोफेशनल अप्रोच आपको कहीं भी लेके नहीं जाने वाला। ये अनप्रोफेशनल आपको ले डूबेगा, मैं बता देता हूं इस बिजनेस के अंदर। अगर आपने एटीट्यूड उस तरीके का रखा कि उस तरीके से बिजनेस नहीं होता, वो बिजनेस को बिजनेस माइंडसेट के साथ कीजिए। बिजनेस के अंदर आप डील डोल करोगे तो मैं आपको कह रहा हूं, आप जो दोगे इस बिजनेस में वही आपको रिटर्न बैक मिलेगा। अनप्रोफेशनल तरीके से काम करोगे, अनप्रोफेशनल तरीके से पैसे आपके पास कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी 1 महीने में एक पे आउट निकलेगा, कभी 3 महीने में लग जाएंगे एक पे आउट निकालने में, राइट। ऐसा होता होगा ना कई लोगों के साथ, एक पे आउट निकल गया, उसके बाद 6 महीना बैठे हुए, पे आउट ही नहीं आ रहा साहब। आपने उस हिसाब से काम ही नहीं की, कंपनी रुक रुक के पेमेंट करती, जैसा आप बोगे वही काटोगे दोस्त। इस बिजनेस में बड़ा प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूँ। नौकरी में तो फिर भी होता है कि एक बार सिलेक्शन हो गया, चले गए, काम करो नहीं करो धीरे। भाई प्राइवेट जॉब में तो अब तो नहीं पॉसिबल है, पर गवर्नमेंट जॉब में लोग होते हैं एक बार कैसे भी करके एंट्री कर गए, तो काम करो नहीं करो पैसा तो आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, बदलाव क्या चाहिए? बदलाव ये चाहिए कि आपको इस बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल अप्रोच लाना पड़ेगा। प्रोफेशनल अप्रोच के कई सारे तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कई लोग इस बिजनेस में आते हैं ट्राई करने के हिसाब से आते हैं, कई लोग हॉबीज समझ लेते हैं, कई लोग प्रोफेशनल होकर के इस बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं। ट्राई करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अरे यार भाई ने बोला तो चलना एक बार आइडिया तो देना, दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ट्राई करते हैं ना, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइफ तो चली रही है। जब आदमी ट्राई करने के अप्रोच से घुसता है, जब उसकी अप्रोच यही है कि ट्राई करना है, तो ट्राई करके आएगा, ट्राई करके निकल जाए। कोशिश करने से इमीडिएटली आपको 1-2 महीने में रिजल्ट तो मिलने सर यहाँ पे, राइट। तो आदमी 1-2 महीना ही कोशिश करेगा, कोशिश किया नहीं हुआ बाहर निकल। कुछ लोग हॉबीज होते हैं, हॉबीज इन द सेंस उनके पास फ्री टाइम होता है, लगता है क्या करें यार, कहाँ जाए, चलना वो मीटिंग अटेंड करते हैं, 2-3 लोगों से देखते हैं, बात करेंगे, टाइम निकल जाएगा, 1 घंटा समय निकल जाएगा और कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। हॉबीज है, वो भी नहीं चलेगा साहब। ट्राई के एटीट्यूड से भी आओगे, नहीं चलेगा। आप जब क्रिकेट खेलने जाते हो, कई लोग, हम लोग, आप जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, आप देखो आप लोग में कई लोग होंगे जो क्रिकेटर होंगे, राइट। क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम था, क्रिकेट में एक लेवल तक हम लोग खेले भी, राइट। लेकिन हम लोग एक समय के बाद ना हम लोग उस चीज से हट गए, क्योंकि नौकरी वोकरी पकड़ ली, तो फिर वो कभी भी हो नहीं पाया। तो हम लोग आज भी मतलब हॉबीज की तरह क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। तो क्या आज हॉबीज की तरह अगर हम लोग क्रिकेट मैच खेलने चले गए, टूर्नामेंट हो रहा है, वहां पार्टिसिपेट कर लिए, आप क्या उसमें कहीं कोई फ्यूचर बना सकते हो? किसी भी तरीके से आप उस क्रिकेट में अगर हॉबीज या ट्राई करके खेल रहे हो, महीने में 1 बार 2 बार खेलते हो, तो क्या आपका करियर बन सकता है? क्या नहीं बन सकता।
वो ट्राई करोगे तो उसी तरीके से कोशिश किए, घूम फिर के आ गए, हॉबीज किए अपना, चलो ठीक एंजॉय किए आ गए, राइट। लेकिन जो बंदा क्रिकेट को अपनी हॉबी बना लिया है, आप देखना स्टेडियम में सुबह सुबह 5:30 बजे वो पूरा किट पहन करके लेके बैग टांग करके तैयार रहता है कि मेरा कोच आएगा और हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। उसके एटीट्यूड से आपको मालूम चल जाएगा यार ये बंदा का बॉडी फिजिक देख, बॉडी लैंग्वेज देख कितनी शानदार है, ये बंदा बहुत कमाल करने वाला है यार, इसकी बॉडी फिजिक हाइट देखिए, देख आपको बॉडी लैंग्वेज से मालूम चल जाता है, देख के ही बोलते हैं यार इस बंदे की फिटनेस कितनी जबरदस्त है, राइट। वो प्रोफेशनल बंदा है, वो जब उससे बैठ के पूछोगे ना बेटा क्या चाहते हो लाइफ में, सर मेरे को ना मतलब विद इन 4 इयर्स, मुझे 4 साल के अंदर ना मेरे को राजस्थान रिप्रेजेंट करना, पूछना, बच्चे बोलते हैं साहब, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स। कोई ने ट्रेनिंग दिया उनको, कोई भी ट्रेनिंग नहीं दिया सपनों के बारे में, यहाँ तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, उन बच्चों को किसने ट्रेनिंग दिया जिसकी उम्र ही 16-17 साल हो रही है आज के डेट में। They all are talking about dreams कि मेरा सपना है कि मैं आईपीएल में घुसूं, मेरा सपना है कि मैं वनडे में आप बीसीसीआई में वहां रिप्रेजेंट करूं, कंट्री रिप्रेजेंट करूं, रणजी मैच खेलूं, वो दे आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स बच्चे, और वो उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। जब उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल बन के खेलते हैं। कभी देखा है उन जो प्रोफेशनल को कि भैया अपना हाफ पैंट पहन के आ गए, शूज पहने, चप्पल पहने चले गए, बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं, वो बिल्कुल फिट फाट टिक टॉक होकर के मैदान में पहुंचते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे आके पहुंच जाते हैं। दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, और वही लोग हैं जो आज आईपीएल मैच में आप देख रहे हो ना, नए नए चेहरे, रिंकू आया 5-6 बॉल पे 5 छक्के मार रहा है, आते के साथ धमाल मचा दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 साल सुबह 5:30 जब आप सोते रहते हो, बंदा मैदान में प्रैक्टिस करते रहता था, प्रोफेशनल अप्रोच, वो उस आदमी को वहां रातों रात वहां उठा के ले गया, राइट। इस बिजनेस में हमारे भी यही प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनल अप्रोच हम लोग रखते नहीं, हम लोग ट्राई और हॉबीज के हिसाब से आते हैं। तो अगर ट्राई हॉबीज कर रहे हो तो कोई फ्यूचर नहीं है इस बिजनेस के अंदर, आप इस चीज को क्लियर कर, कोई फ्यूचर नहीं है, समय खराब कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे प्रोफेशनल अप्रोच आपको लेके आना पड़ेगा। प्रोफेशनल अप्रोच में थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ कर दूं, प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब होता है प्रोफेशनल तरीके से सोचना, इस बिजनेस में कैलकुलेशन बैठाना कि यार क्या कर सकते हैं, मेरी टीम में 5 लोग हैं, क्या किया जाए उसके अंदर, बाकी लोग क्या कर रहा है, आप लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों से इनपुट्स लेना, उसको इंप्लीमेंट करना, नॉलेज लेना, ट्रेनिंग अटेंड करना। और जब भी आदमी ट्रेनिंग अटेंड करके जब आप करने आते हो किसी भी तरीके से, तो आप थोड़ा सा वहां पे भी प्रोफेशनल अप्रोच लाओ। जब भी कोई मीटिंग अटेंड करो, एटिकेट्स के साथ मीटिंग अटेंड करो, भले ही आपको कोई लोग देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, कि सब बदलाव करने पड़ेंगे इस बिजनेस के अंदर, आपको अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, सब कुछ बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलोगे हर चीज मिलेगा, कुछ नहीं बदलोगे कुछ नहीं मिलेगा, ढेला भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और आपको बात करते हैं एटीट्यूड विच नॉट वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ एटीट्यूड है जो काम नहीं करता। एम्प्लॉय एटीट्यूड में हम लोग सारे एम्प्लॉय को एक करने पे मत तौल देना कभी भी। एम्प्लॉय एटीट्यूड के अंदर बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वहां पे काम करो चाहे जैसे भी करो, आपकी सैलरी गिरते पड़ते लास्ट महीने में आपको आ जाती है, राइट। तो बिजनेस में वैसा नहीं होएगा। यहाँ पे आप सोचोगे कि यार छोड़ो ना यार, जैसे तैसे करते हैं, उसके बाद लास्ट में कुछ ना कुछ पीबी होगा, मैचिंग हो जाएगा, तो पीबी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। मैचिंग निकालने के लिए प्रॉपर, एक मैचिंग निकालने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग वर्किंग करनी पड़ती है, रात दिन काम करना पड़ता है, तो जाके मैचिंग होता है। ये बिजनेस का गेम को आप समझो, ये बिजनेस मैचिंग का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर मैचिंग करने के लिए आपको दोनों लेग पे बराबर काम करना पड़ेगा, राइट। ये उस एम्प्लॉय एटीट्यूड से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे 1 रुपया कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, वहां पे 1 रुपए कमाने के लिए मेहनत करो ना, आप आधा घंटा 1 घंटा ऑफिस में आके बैठ जाओ, आपके अर्ली जो आपके चार्जेस है उसके हिसाब से पैसे तो बन ही रहे हैं ना आपके। 8 घंटे की नौकरी है, कोई 8 घंटे में किसी का रेट 10,000 है, कोई 15,000 कमा रहा है, ठीक है ना, तो आप 2 घंटे ऑफिस में बैठ गए तो 4,000 बन तो गए। लेकिन इस बिजनेस में बनेगा क्या? इस बिजनेस में नहीं बनेगा सब, जितना दोगे उतना मिलेगा, ठीक है। मिडिल क्लास एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे ये होता है, मिडिल क्लास का मतलब ही कि जो मिले सो उसमें एडजस्टमेंट वाला हिसाब किताब है, उस चीज में एडजस्टमेंट कर लेते हैं लोग। चलो ना यार पे आउट आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर अगले महीने देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। उनके पास प्लानिंग नहीं, उनके पास एग्जीक्यूशन नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं, कुछ नहीं उनके पास है, बस वो भगवान भरोसे करते जरूर है, मीटिंग में आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर वे नहीं है काम करने का, राइट। उसी तरीके से मिडिल क्लास फैमिली के पास भी कोई बहुत ज्यादा जुगाड़ नहीं होता है, जो चल रहा है सो चल रहा है, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, एडजस्ट कर लेंगे। वो एडजस्टमेंट पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, वो कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर देखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ बॉक्स एक्शन।
देखो इस बिजनेस के अंदर ना आपको आने के बाद हम लोग मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना वो एक बॉक्स के अंदर ही है, उसी के दायरे में ही सोचते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है ना वो नहीं करते। एक पुराना डरा जो काम करते हुए आ रहे हैं लोग, आप लोग ये दिखाओ डेमो दो, प्लान दिखाओ डेमो दो, तो डिजिटल का सहारा लेना नहीं चाहते, वो ऑफलाइन 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 कूद रहे हैं। भाई सीखना पड़ेगा ना, अपडेट तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचते नहीं है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में सोचते नहीं, वो जितना जानते हैं उसी में खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, अपग्रेड नहीं करते। आपको अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स काम करना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ फेल्योर। मैक्सिमम प्रोफेशनल अगर इस बिजनेस में आने के बाद जान तो काम स्टार्ट ही नहीं करते। पता है क्या, अगर आप ढंग के लोगों को बिजनेस में लिया होगा, दे विल नॉट स्टार्ट वर्किंग एट ऑल। वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं स्टार्ट करते? उनको लगता है यार स्टार्ट कर लिए, कुछ लोगों को ले आए, कल को अपन ही नहीं कर पाए तो क्या बोलेंगे लोग, मार्केट में क्या जवाब देंगे, साला खुद मिलना उसी के साथ है, बैठना उसी के साथ है, वो 4 सवाल पूछेगा, तेरा चल रहा है क्या? अरे तू तो कुछ कर रहा था ना, तू आज से 6 महीने पहले, 8 महीने, क्या हुआ उसका? अब उसके पास खुद ही बिलीफ नहीं है, खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा, राइट। और उसे बार बार डर लगता है कि यार पता नहीं यार ये बिजनेस है, चलेगा नहीं चलेगा। अपने अपने लोगों को मैं बिजनेस में, कल को वो लोग बोल रहे हैं यार तूने क्या कहा, तूने ज्वाइन करा दिया यार। तो फियर ऑफ फेल्योर यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ले डूबता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ बताते हैं एटीट्यूड रिक्वायर्स टू गेट सक्सेस। देखो एटीट्यूड जो यहाँ जरूरत है इस इंडस्ट्री में, विलिंगनेस टू लर्न, मतलब आपको सीखने के लिए आपकी चाहत होनी चाहिए, क्या आप सीखने की छटपटाना चाहिए यार आदमी, मैं बिल्कुल सीखना चाहता हूँ सर, आप बताओ क्या करना है मुझे, कैसे करना है। उस एटीट्यूड के साथ भले ही आप किसी भी लेवल पे काम करते हैं, अगर वो एटीट्यूड आपके पास है तो 100% इस बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे। विलिंगनेस टू चेंज बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को बदलने के लिए आपको चाहत होनी चाहिए कि मेरे को चेंज करना है अपने आप को। आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके रहन सहन का तरीका, हर चीज को आप बदलना चाहते हो, ठीक है। जब बदलना चाहोगे तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आप काम भी करोगे, करेक्ट। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट मेंटलिटी, कई लोग यहाँ पे ये सोच के आते हैं इन्वेस्टमेंट, अरे यार कौन इन्वेस्टमेंट करे, कि वो ये भूल जाते हैं इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस के अंदर नहीं करें, इन्वेस्टमेंट आप खुद के अंदर करो। पैसा अगर लगा भी रहे हो तो पैसा आप अपने ऊपर ही लगा रहे हो, अपने आप को अपग्रेड करने के, जो समय लगा रहे हो, जो एनर्जी लगा रहे हो, वो खुद को डेवलप करने के लिए लगा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट में सोच मत है कि यहाँ पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगेगा तो उसका फायदा आपको खुद मिलने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं कि 2 चीजें जो हैं आज के डेट में जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, और वो है आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स, और सेकंड है फेल्योर इन चूजिंग राइट कंपनी। देखिए आप लोग सब लोग एटमी में हो, दैट मींस एक इतने स्मार्ट तो हो ही आप लोग, क्या आपने एक सही कंपनी पकड़ तो लिया, फिर भी नहीं हो पा रहा, फिर भी नहीं कर पा रहे, रीजन जानते हैं क्या है? गो टू वर्क पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आपने जो प्लानिंग किया, जो वर्किंग किया, उसके कंसिस्टेंट हो क्या उसके ऊपर, क्या प्लान जो डेली दिखाने की बातें हो रही एवरीडे कर रहे हैं, क्या कंसिस्टेंट होके काम कर रहे हो क्या? अगर आप कंसिस्टेंट होके काम कर रहे हो तो रिजल्ट्स तो आना ही है। लेकिन आपने प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे हो जाता है कि 2 दिन करते हैं 4 दिन गायब, 2 दिन आते हैं 4 दिन गायब, तो फिर 3 दिन आए फिर 2 दिन गायब, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट जो नहीं रहने के कारण से इस बिजनेस में, और ये बिजनेस क्या इमीडिएट रिएक्ट करता है, इमीडिएट। गलत तरीके से काम करोगे रिजल्ट गलत हो जाएगा, सही तरीके से बार बार काम करोगे, प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे काम हमें यहाँ पे करने की, कोई बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं, राइट। अब देखो एक चीज है कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली मैं ये स्लाइड उन लोगों के लिए है जो नए होते हैं, ठीक है ना। एक चीज, कोई अगर इस आज के मीटिंग में नया लोग बैठा है जो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कभी भी कोई कंपनी को जब ज्वाइन करना हो, आपके पास जब प्लान आता है ना, तो आप पहले पूछो उस व्यक्ति से, यार आपका ग्लोबल प्रेजेंस है क्या? पहली चीज, ग्लोबल प्रेजेंस है क्या? क्यों पूछना जरूरी है, ये भी इसके पीछे रीजन है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये इसकी जो सक्सेस है, उस पर्टिकुलर कंपनी की जो सक्सेस है, वो डिपेंड करता है उसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। वी आर कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी के होंगे तो हर एक कंट्री में हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी। आपको मालूम है हिंदुस्तान से ऐसे कितने सारे कंपनी है, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, और अनफॉर्चुनेटली उनको वहां पे लाइसेंस ही नहीं मिल पाता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, लेकिन अच्छा और सारी कंपनी बोलना शुरू करूंगा तो वो 4-5 कंपनी ने आज नहीं पिछले 6 साल से ट्राई कर रहे हैं कि मैं उस कंपनी में जापान में लॉन्च कर दूं, यूएसए में लॉन्च कर दूं, कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि उनके पास जो प्रोडक्ट है ना, वो उस लेवल की है ही नहीं, वो टेस्ट पास नहीं कर पाते भाई साहब। कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च होने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी रिपोर्ट्स बनती है, सबमिट होता है, फिर अप्रूवल आता है, तब आप किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान की ऐसी बहुत सारी कंपनी जो 6 साल से ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उस लेवल पर क्वालिटी नहीं है। और एटमी आपके हाथ में ऐसी कंपनी है, जिस कंट्री में घुसती है वहां पे
आज तक कोई इसका फाइल रिजेक्ट नहीं हुआ है। 27 कंट्री के अंदर हमारा प्रेजेंस, 13 साल की जर्नी में 27 कंट्री, यानी कि हर साल 2-2 कंट्री में बिजनेस लॉन्च हो रहा है। 202 और अब ये आपके प्री लॉन्च ऑफर तो लगभग 60 प्लस कंट्री के अंदर है, यानी कि 2027-28 तक तो हम लोग 100 कंट्री क्रॉस कर चुके होंगे। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वर्ल्ड क्लास है, कोई तोड़ कोई है ही नहीं इसका। कोई कंट्री की औकात नहीं है कि आदमी के प्रोडक्ट को रोक दे, रिजेक्ट कर दे। ऐसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, और ऐसी कंपनी के साथ काम करने के बाद अगर आपको क्लैरिटी नहीं है और आप बिजनेस के अंदर आप पैसा काफी सारे कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक डिसीजन आपने जीवन में सही ले लिया है कि आपने एक राइट कंपनी चूज कर ली है, राइट सिस्टम पकड़िए, सही ट्रेनिंग लीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए फुल डेडिकेशन कन्विक्शन के साथ। आप देखना आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर आपके जीवन में पूरी यू टर्न हो जाएगा। राइट, प्रूवन सिस्टम की बात करते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस की बातें क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, प्रूवन सिस्टम भी आपने समझ लिया। राइट, प्रूवन सिस्टम कहने का मतलब कि हमारे पास जो प्लान है काम करने का वो प्रूवन है या नहीं। हमारे प्लान देखो लगातार सेम प्लान चलता रहा और इसी प्लान के तहत कितने 12-12, 13-13 इंपीरियल मास्टर बन चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक से एक डायनेमिक लीडर बन के सामने निकल रहे हैं, कोई डायमंड बन रहा है, कोई सेल्स मास्टर बन रहा है, कोई इंपीरियल बन रहा है, कोई अभी आपके उसके नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। राइट, रॉयल मास्टर बन रहे हैं, सब लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। राइट, मेंटरशिप प्रोग्राम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किस टीम के साथ एसोसिएटेड हो और किस लेवल की आपको मेंटरशिप मिल रही है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली आप लोग राइट प्लेटफॉर्म पे जहां पे इतने शानदार लीडर आकर के अपनी अपनी बात रखते हैं। ठीक है, और आपकी जो कंपनी होनी चाहिए वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, जो कि है। अब आप जो नए लोग हैं, आप लोग, मैं पहले कहा था कि स्मार्ट पीपल टेक क्विक डिसीजन, तो आप लोग इमीडिएट डिसीजन लीजिए और इस बिजनेस को साइन अप कीजिए, जर्नी स्टार्ट कीजिए। अगले 3 साल में अपने लाइफ को बदल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपके जो मैंने आज प्रेजेंटेशन का जो बेसिक था वो मैंने आपके सामने रखा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट चला, मैं टाइम के अकॉर्डिंग में खत्म करना चाह रहा था कि ताकि समय पे खत्म हो जाए तो बेटर है। राइट, इतना ही मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने इतना समय दिया, कनेक्ट रहे, लगातार बने रहे, सिस्टम को सुना, देखा, समझा। राइट, और इस बिजनेस में लग के काम कीजिए। अगला बिजनेस 3 साल जो है, नेक्स्ट 3 इयर्स, इस बिजनेस को फुल डेडिकेशन के साथ दे दीजिए। भले ही पार्ट टाइम कर रहे हो चाहे फुल टाइम कर रहे हो, जितना समय लगाना है क्वालिटी टाइम लगाएं, बिजनेस के साथ जुड़ें, अच्छे लीडरशिप के साथ उठना बैठना स्टार्ट कीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए। सक्सेस होने से इस इंडस्ट्री के अंदर कोई रोक नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और ये मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ और हमारे साथ अरुण मीना जी हैं, जयंता बिहारी जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, मैं तो मुझे सबसे पहले ताली बजाना चाहूंगा सर। यस जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुश आपने हमें दिया, वंडरफुल। मैंने पूरी कोशिश की कि उसको सही तरीके से मैं डिलीवर कर पाया आपके सामने। राइट, और आग मैं लगा दी, सारे लोग बताएंगे। राकेश सर, आपकी आवाज का तो वैसे भी हम लोग फैन है, आग लगा दी, सच बता, सीरियसली वंडरफुल सेशन। राइट सर, थैंक यू सो मच। दोबारा मौका मिलेगा, मैं फिर आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। लेकिन यस, दिस इज द गोल्डन प्लेटफॉर्म, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई एम टेलिंग यू गाइस, इस बिजनेस में आने के बाद आप लोग इमीडिएटली साइन अप होकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और धूम धड़ाके के साथ कीजिए। अगल बगल मत देखो कौन क्या बोल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी सब आपको नोचने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। तो बिजनेस लेके बाहर निकलो और मैं तुम्हें नोच दूं। राइट, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को एडुकेट कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिर मैदान में उतरिए। देखिए बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। जैसे विराट कोहली बोलता है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ, सब साइलेंट हो जाएंगे। ये ऐसे वाला प्रेजेंटेशन रहा और ऐसे सीखने को मिला। जैसे कि सक्सेस के बारे में सब बोलते हैं, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो आज के सेशन से ऐसे सीखने को मिला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड चेंज इज द ओनली कंस्टेंट इन द वर्ल्ड। तो तरीका बदल गया है, जमाना बदल गया है, जमाने की अकॉर्डिंग आपको स्किल डेवलपमेंट करना होगा। जमाना था स्पेशलिस्ट का, अब सुपर स्पेशलिस्ट का जमाना आ गया है। कोई आई डॉक्टर आई देखता था, अभी लेफ्ट आई देख रहा है, कोई पर्टिकुलर सेल देख रहा है। तो इसीलिए अभी जमाने के हिसाब से हमको बदलना है और जो चेंजेस हमें करना है, जो स्किल सेट, अभी नए-नए तरीकों, नए-नए टूल आ गए हैं, माइंडसेट तो है हमारा, तो स्किल सेट, टूल सेट इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है। और जैसे सर ने बताया है कि हमारे ट्राई हॉबी वाले एटीट्यूड को छोड़ के हमें प्रोफेशनलिज्म में दिखाना है, प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है अगर हमें इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है। चाहे हमें पार्ट टाइम करना है या फिर फुल टाइम करना है, जो प्रोफेशनलिज्म के साथ 2 से 3 घंटा हर रोज देना है और तब तक देना है जब तक हम कुछ बनना जाए। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं अरुण सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको
अनम्यूट का ऑप्शन दे ताकि हम जो क्या मोटो के साथ एंड कर सके सर। राइट सर, रेडी। Just wait. Eat the vision. Follow the don't follow the vision. Do it. Come on, let's do it. Do it. Come on, let's do it.